कंप्लीट ब्लड काउंट। सो मैंने आपका अभी अभी सिलेबस देखा जिसके अंदर मुझे बेसिक प्रिंसिपल्स का पता चला जो कि हमारे जो है कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऑटोमेटेड हीमाटोलॉजिकल एनालाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी काउंट इज और कंप्लीट ब्लड count and complete blood examination both are same thing. So their manual they are very manual methods are available in commercially available. So actually what types of manual methods are or why we are not using manual methods nowadays? सो मैनुअल मेथड हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसके ऊपर हमारी लेबर ज़्यादा लगती है, उसके ऊपर जो है हमें जो ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड वी हैव टू इंक्रीज दी लेबर, और उसमें जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो हमारी कंप्रोमाइज हो सकती है बिकॉज इट्स हाईली डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन जो कि काम कर रहा है। ठीक है, so now we are using hematological analyzers or automated analyzers especially to perform complete blood count or CBC. ठीक है, so your first test is complete blood count. Complete blood count होता क्या है? Complete blood count measures several components of blood: red blood cells, white blood cells, platelets, hemoglobin, hematocrit. Okay, so these are actually or इन्हीं से related कुछ और पैरामीटर्स मींस रेड सेल इंडिसेस, प्लेटलेट इंडिसेस, एंड इन वाइट ब्लड सेल्स analyzer will count the analyzer will count percentage and absolute count of all types of white blood cells. Okay, so these are actually parameters, or these are actually important points or important parameters which can be counted through hematological analysis. So और ये सारी चीज़ें बहुत important है to study blood normal blood composition. Okay, सो व्हाट आर हीमाटोलॉजिकल एनालाइजर्स? ये सारी बातें उस तरह से नहीं करवाऊंगा जिस तरह से एमएलटी के लिए हैं। ये सारी बातें जो हैं इनमें से जो आपको इम्पोर्टेंट है वही करवाई जाएंगी। इन सबको परफॉर्म करने के मैनुअल मेथड्स भी अवेलेबल हैं, बट नाउ ड्यू टू मैंने आपको रीजंस बता दें जिसकी वजह से हम वी आर परफॉर्मिंग इट थ्रू ऑटोमेटिकली। सो व्हाट आर ऑटोमेटेड एनालाइजर्स? ऑटोमेटेड एनालाइजर्स आर कंप्यूटराइज्ड स्पेशलाइज्ड एनालाइजर्स। ओके, ठीक है, ये बातें रहने दें, आपकी कोर्स में इंक्लूड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? दे आर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फॉर सीबीसी इज कुल्टर प्रिंसिपल। ओके, सो व्हाट इज कुल्टर प्रिंसिपल? कुल्टर वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द whole blood cells through automated analyzers. Okay, so what is the principle which is using by the automated analyzer? So first principle is Coulter principle, or in other words we say electrical impedance method. Okay, so मैंने अभी देखा कि आपके न्यूट्रिशन के कोर्स में ये शामिल है। So what is Coulter principle? Impedance is proportional to volume particle. So इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कोल्टर प्रिंसिपल के बाद। ऑप्टिकल लाइट स्कैटरिंग मेथड इज आल्सो another principle for to perform CBC. Flow cytometry is another principle. Fluorescence is another principle to perform complete blood count. So what is electrical impedance method? इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेथड फर्स्ट पहले वेल्सी कोल्टर ने 1956 में यूज़ किया था। नाउ डेज जो भी हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक बैकमैन कोल्टर, सिस्मेक्स, एबट, होरिबा मेडिकल के जो जितने ऑटोमेटेड एनालाइजर हैं बेसिकली उनमें यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है। सो दिस इज कोल्टर प्रिंसिपल। इन कोल्टर प्रिंसिपल यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन अ डायग्राम के देखें आपके पास जो है there are two electrode, positive electrode and the negative electrode. Okay, so positive electrode and negative, when current passes through these electrodes, so there is a solution in green color is showing the presence of cell and presence of cell in a solution. So white portion is actually a solution and the electrodes are present in a solution, and when cells moves, or this is a aperture, and this actually a small opening or hole is a aperture. Okay, so when we count blood cells, we electrically
join this we can say this instrument. Okay, so positive electrode and negative current moves from positive to negative through solutions. Okay, fine. So through aperture, what is the importance of aperture? When RBC passes through an aperture, or red blood cells or any cell pass through an aperture, this aperture, uh, we observe disturbance in continuous current or resistance in continuous current. Okay, if I elaborate it again, there it is a positive terminal, it is a negative terminal. So when cells are present in a solution, or when cells passes through an aperture, then resistance in current or current disturbance in current appears. And how we can record this disturbance? We can record this disturbance in current on oscillometer. Okay, a special type of meter used to calculate the resistance in current in the form of graphs. So we obtained graphs on the computer when cell passes through this aperture. Okay, so when cell passes through this aperture, peaks forms. If I show you, okay, another diagram is cells are passing through this. So I will send you oscillometer diagram. So graph forms or peaks will form in आफ्टर जो है जब एनालिसिस होगा ड्यूरिंग पैसेज ऑफ आरबीसीज peaks will form or graph will form. So by the by the analysis of graph, or by the peak analysis of peaks which form during passage of red cells through aperture, we count the number and the we count the number of cells and the volume of cell. Okay, so how cell can how recording on the oscillometer or graph helps in the uh, helps in the recording of number of cells or volume of cells. So uh, here you can see number of impulses is equal to number of cells. It means how जितनी तरह की हमें ग्राफ के ऊपर हमें जो है पीक्स मिलती हैं, जितनी हमें ग्राफ्स के ऊपर इंडिकेशंस मिलती हैं, वो एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। एंड दी वो जो पीक बनती है ग्राफ के ऊपर, उसके जो हाइट शो करती है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम वी आइडेंटिफाई कि कौन सा सेल है। ठीक है, इन सिंपल वर्डिंग यहाँ से क्या होगा कि एनी सेल जो है वो पास होगा अपर्चर में से, जब अपर्चर में से गुजरेगा तो उस किलोमीटर के ऊपर क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और जिस तरह से जो है पीक बनती है ग्राफ के ऊपर, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो जितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स होंगी ग्राफ के ऊपर, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। एंड पीक की हाइट कितनी है, ठीक है, पी की हाइट कितनी है, वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के। दिस इज इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेथड और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। ठीक है, सो ये किसके लिए था, हमारे सेल्स काउंट के लिए, उसका वॉल्यूम काउंट के लिए भी है। और उसके बाद जो है हमारे पास flow cytometry, optical method or flow cytometry is another method. It's basically based on the reflectance, transmission and scattering of light. Okay, so in simple way, this you can observe flow cytometry is also like this instrument. Okay, in a so RBCs or sample passes through in a linear column or a narrow column one by one, and the light, or sometimes we can say laser light, strike with these samples, and after striking there is a detector of light. Okay,
and the when a detector of light detects the concentration of light or other things. So, reflectance of light, as I have told you, reflectance and transmission and scattering of light is measured by the detector. So, this is actually a basic principle of flow cytometer. So, there are two types of actually light. Light can reflect in two directions. First one, forward scattering, and the second is side scattering. Okay, so usually from forward scattering, we measure the cell size, and the from the light which scatters through the side, we measure the presence of RNA or DNA inside the cell or internal cell structure. Okay, so flow cytometry based on this principle बहुत ज़्यादा नहीं है आपके कोर्स में, तो इतना याद रखिएगा कि basically based on the light scattering mechanism, and other principle is optical light scatter. It means it's not a flow cytometry, but it is very close to the flow cytometry, in which commonly laser light is used, or basically common light is used, or other a few other lights are can be used. So laser light reflection of or scattering of the on the basis of scattering of light or reflection of light, we can easily identify यहाँ पर भी इसी डायग्राम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि हमने सेल का साइज मिल सकता है, और हमें जो है जो इंटरनल स्ट्रक्चर भी मिल सकता है. तो ऑप्टिकल लाइट स्कैटरिंग इज वेरी क्लोज टू द फ्लो साइटोमेट्री. ओके, fluorescent flow cytometry is another important, is actually a modification in flow cytometry, in which special fluorescent reagents are used, which binds with the cells of the blood. They इस तरह से क्या होता है, सेल्स के ऊपर जब जो है मार्किंग हो जाती है, फ्लोरिसेंट डाइज ऐड हो जाते हैं, तो फ्लो साइट थ्रू वी कैन check the we check the colored substance on cells through flow cytometry. Okay, so ये additional एक चीज है flow cytometry, लेकिन ये बातें जो हैं खत्म है. So RBC count जो है counted by two methods, aperture impedance and light scattering method are common methods. Okay, so impedance methods को जो है electrical resistance method भी कहा जाता है, Coulter principle को ये भी कहा जाता है. So बेसिकली आपके जो कैरिकुलम में है, ये ही जो है प्रिंसिपल शामिल है. ठीक है, और इसके अलावा जो है और भी प्रिंसिपल हैं, जैसे कि आर आई है, फ्रीक्वेंसी मैयर की जाती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजारी जाती हैं किसी भी सेल्स के ऊपर, तो हमें पता चलता है. सो ये कुछ और बातें इंपॉर्टेंट बातें. what are PCB and red cell indices? So pulse height analysis allows PCB and MCB to be determined. ओके, सो पल्स हाइट मतलब जो ऑस्किलोमीटर के ऊपर जो पल्स बन रही थी, जो हमारे पास ग्राफ में पीक आ रही थी, उसकी जो हाइट कितनी है, देन अलाउज पीसीबी एंड एमसीबी टू बी डिटरमिन्ड, उससे हमें पता चलता है. और एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, what are these are actually parameter some other parameter related to red cell. For example, व्हाट इज एमसीवी? एमसीवी इज मीन सेल वॉल्यूम. ओके, मतलब कि जो हमारे कॉर्पसेल्स हैं, जो हमारे रेड सेल्स हैं, उनका वॉल्यूम क्या है. एंड एमसीवी मीन सेल हीमोग्लोबिन. ये यानी कि हमारे जो रेड सेल्स हैं उनमें मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी है. सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द सेल, देन वी से इट्स अ मीन cell hemoglobin. Sorry, it's a mean cell hemoglobin just. And MCHC is actually a concentration. Okay, सो वन इज की एक हीमोग्लोबिन की है अमाउंट जो है, दूसरी जो है मीन हीमोग्लोबिन की वैल्यू, दूसरी जो है उसकी कंसंट्रेशन है. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, देयर इज also a difference between the values of all these parameters. So MCV, MCH and MCHC are red cell indices. Okay, सो ये भी आपको पता होगा, तो तभी आप जो है मूव कर सकेंगे कि व्हाट इज पेशेंट को कौन सी जो है डिजीज है, या पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है. फॉर एग्जांपल, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, as you are nutritionist, so in iron deficiency anemia, usually we diagnosed iron deficiency with red cell count and red cell indices as well. So without just on the basis of hemoglobin and red cell, we
कैन नॉट डायग्नोज ऑल टाइप्स ऑफ अनीमिया, ठीक है। सो ये सारी बातें जो है इनमें रेड सेल इंडिसेस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा सीबीसी का पोर्शन। सो उसके बाद जो हमारे पास है WBC काउंट, ये रेड ब्लड सेल्स, देन हमारे पास कंप्लीट ब्लड एनालिसिस के अंदर और काउंट के अंदर हमारे WBC भी इंक्लूड हैं, ठीक है। एंड WBC भी काउंटिंग जो है उनकी भी काउंटिंग इम्पीडेंस और लाइट स्कैटरिंग बेस पर भी की जाती है, ठीक है। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो ब्लड उसमें हमें सिर्फ वाइट ब्लड सेल चाहिए। सो in a separate chamber in an automated analyzer दे स्पेशल रिएजेंट इज यूज जिसको हम लाइजर कहते हैं। तो लाइजर जो है वो लाइजर जो है उसको ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है। तो लाइजर लाइज टू दी रेड ब्लड सेल्स एंड जस्ट वहां पर क्या रह जाते हैं WBC। तो उन WBC वो व्हेन WBC पास थ्रू दी अपर्चर देन क्या होता है उसी तरह रेजिस्टेंस करंट में कितनी रेजिस्टेंस है उसको ग्राफ के ऊपर जो है ऑब्टेन किया जाता है और उसी को हम जो है WBC काउंट और उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं कि हम जो है 3 पार्ट डिफरेंशियल, 5 पार्ट, 7 और 7 पार्ट डिफरेंशियल होती है कि अब देखिए हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स कितनी है 5। और अगर हमारे पास कोई एनालाइजर ऐसा है कि जो 5 टाइप्स ही बता रहा है उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, देन वी से कि एन इंस्ट्रूमेंट इज 5 पार्ट डिफरेंशियल। और अगर 3 पार्ट डिफरेंशियल में क्या होता है, एन हीमाटोलॉजिकल एनालाइजर विद द वैल्यू ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड ऑल अदर इन मिक्स्ड कंडीशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं इन ऑटोमेटेड एनालाइजर, वैल्यू ऑफ न्यूट्रोफिल, वैल्यू ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मिक्स्ड, जो कि हम कहते हैं कि जिसमें मिक्स्ड के अंदर हमारे पास इयोसिनोफिल, बेसोफिल और बाकी वो शो करता है मिक्स में। तो वी ऑब्टेन 3 पैरामीटर्स इन 3 पार्ट डिफरेंशियल ऑटोमेटेड एनालाइजर, ओके। सो ये कुछ बातें हैं, लेकिन आप लोगों देन इंपॉर्टेंट इज प्लेटलेट काउंट। Platelet count is also depends on the electrical and optical impedance method. Okay, उसी मेथड की, क्योंकि there is a difference between the sizes of red blood cells, WBC and platelet, ठीक है। सो जब साइज का डिफरेंस है तो हमें जो है जैसे कि मैंने बताया कि हमें जो अगर आप इस डायग्राम इस स्लाइड को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमारे पास जी, हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल, जो हाइट है, वॉल्यूम ऑफ सेल शो करेगा। मतलब कि ग्राफ के ऊपर जो एक पीक ड्रॉ होगी उस पीक से हमें वॉल्यूम ऑफ सेल पता चलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सेल विल हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेल। जैसे कि अगर आप कहेंगे लिम्फोसाइट्स का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल, देन वी विल ऑब्टेन पीक विद इंक्रीज्ड हाइट, ओके। और उसके बाद अगर आप कहें कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे पता चलेंगे, तो वो आपको पता ही है इम्पल्स इतने ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो इम्पीडेंस मेथड से ही हम अब प्लेटलेट इज वेरी स्मॉल, उसके बाद जो है रेड सेल्स आते हैं, देन और WBCs आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। तो हमें जब साइज का डिफरेंस पता चलता है थ्रू पीक और तो वी आइडेंटिफाई इजीली कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट, RBC और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये सारे जो है कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हमारा बेसिक प्रिंसिपल कौन सा था, कुल्टर प्रिंसिपल एंड लाइट स्कैटरिंग, फ्लो साइटोमेट्री, ये सारे इंस्ट्रूमेंट में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल भी यूज हो सकते हैं, सो देयर इज नो इश्यू। बट जो है ये बात आपको याद रखनी थी कि ये जो है सब बेसिक्स प्रिंसिपल्स यूज होते हैं फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। बिकॉज जब मैंने स्टडी किया आपका ये कैरिकुलम, उसके अंदर कुल्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड इज मेंशन एंड जी